basically the property of Private Beach Resort View, and it's like an independent property, and as well as it also has a mid-person resort for Club Mahindra members. So yeah, this is our room. Let me just give you a mini room tour. Oh nice, I can already see the sea facing view. Just some basic amenities. Let's say hi. Okay, nice. We do have a kind of white colored architecture. This is pretty. Oh, this is beautiful. By the way, hi. That's Hi. mom and dad. They are just enjoying the view. Oh my god, the view here is insane. Let me just. Wow, this is too crazy. I just hear the sound of the water. This is INS Memorial. So guys, we are going to Ocean Grill. This is the restaurant of this resort. Abhi just आए हैं, so we are quite hungry and we are thinking to finish our lunch here. Then we will proceed for the activities. This is quite of a nice restaurant. We do have the sea view. 2 hours later. Guys, it's almost 6:20 now, and now we are going to INS Memorial, where we are going to see the beautiful sunset over the water. So yeah, that's it, and catch you guys over there. This is the way to INS Khukri. As you can see, it's almost sunset time और लोगों को कुछ ज़्यादा ही पता लग रहा है यहाँ पे. So it's almost crowded here. अंदर जाके तो और भी भीड़ होगी, I am guessing. A few moments later. The way to reach over there, जहाँ से हमको ऊपर ले जाया जाएगा. But यहाँ पे it's kind of this kind of way. You can also watch sunset from here. It's also a nice place. But let's see. Let's go over there and watch the sunset. That would be a better option. अभी हम फिलहाल ऐसे रास्तों पर से चल के जा रहे हैं. Guys, the view over here, over this side is really nice. Like we have to go over there. Over there is this memorial, but the sunset here is so captivating that let me just show you the glimpse. This sunset over here, this beach, and everything is just so pretty and perfect. A few moments later. So guys, it's 7 o'clock and we have all reached the INS Khukri Memorial. यहाँ पे सामने वॉरशिप रखी हुई है, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी है. So you can just view this point. Also यहाँ पे sunset and things are like quite good. थोड़ी सी भीड़ भी है जिसकी वजह से you might not be able to hear me, but overall it's nice. This is the memorial. This is the warship that has some of the details of all the people who were on the ship, like which is written over here. So it's really nice, kind of informative kind of place, paying tribute. So it was F-145, 149. And this is really nice. यहाँ से एक शाम को कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है, which is pretty. यहाँ पे एक ऐसे like there's this temple over here. वहाँ पे INS Khukri का ship है ऊपर, और यहाँ पे this is kind of caves and temple. But we didn't go there because it's already night and. Guys, you can visit this place at the time of sunset. So यहाँ से आपको पीछे की तरफ बहुत ही beautiful sunset दिखेगा. And along with that आपको यहाँ पे ये INS Khukri warship और INS Khukri की ship वो देखने को मिलेगी. And after that you can enjoy beautiful sunset with beautiful wind और यहाँ पे ऐसे सब lighting and all those kind of things. So I do recommend coming to this place at the time of evening, especially sunset के time पे. तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा. हाँ, crowd बहुत ज़्यादा रहेगी, but that's alright. You can at least compensate for that. So अब मिलते हैं दूसरे दिन दूसरी जगह पे. Hello everyone, good morning. So it's day 2 of our Div tour, and today we are going to visit some of the famous tourist attractions like the most famous one, Div Fort.
and Anapashi we are going to go to Gangeshwar Mahadev, which is like 5 shivlings, and the sea waves, ocean waves do its abhishek, so it's like nice kind of place, and INS museum and all those kind of places. So let's get started. ये है फोर्ट का एंट्री, यहाँ पे दोनों साइड्स पानी है. दिस इज बेसिकली द एंट्री ऑफ द फोर्ट एंड इट्स क्वाइट नाइस. ये दिस वाज बिल्ड बाय पोर्टुगीज. So guys, this is the view from here. हमने वो जो 2 स्टीप चढ़ाई की उसके बाद कुछ ऐसा व्यू आएगा. And this is kind of worth it, like it's nice. यहाँ पे you can see the church, I guess that's St. Paul's Church. Hey. This is P49, so ये वाली दूसरी ship है, not the one that we saw yesterday at Memorial, but we can get to see this one and it's like a nice experience. Also this is only 500 meters far. Diu Fort से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है, so you can like go and visit Diu Fort. After 32 years of glorious service to the nation and navy, the ship is now developed as a museum to inspire people. इसके अंदर आपको जाने को मिलता है और ये पूरा शिप ऐसे देखने को मिलता है. This one is really interesting. दिस इज़ एट द ग्लैंस, इसका ओवरऑल ओवरव्यू. और यहाँ पे सारे बोर्ड्स में अलग अलग शिप्स, लाइक अलग अलग क्लासेस के शिप्स होते हैं, वॉर शिप्स, फ्लीट शिप्स, और वो सब बताए गए हैं. रियल इन्फॉर्मेटिव. Now we are entering the INS Kukri. दिस इज सो This is इंटरेस्टिंग. the F149. This is the Saga of Beverly, but ये इसमें नहीं है. This is the another model. या लिविंग स्पेस फॉर द शिप्स क्रू इसके नीचे है. इट इज़ क्लोज राइट नाउ. It's close. Serving with pride and honor, INS Kukri, best of the corvette ship since 1989. पूरा ऐसा शिप है, आपको अंदर अंदर सारे लाइक रियल शिप का वो देखने को मिलेगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, बट दिस इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग जिससे आपको आइडिया लगे. दिस प्लेस इज मस्ट विजिट, एंड अगर आप दीवार है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए. 6 डेक शिप, इसमें से 3 फ्लोर अंडर वाटर है और 3 फ्लोर अबव वाटर है, जिसमें से हम थर्ड वाले पे जाके आए. वहाँ पे वी हैड दिस कमांड सेंटर जहाँ से शिप चलती है और वो सब. वी हैड अ बिट ऑफ इन्फॉर्मेटिव सेशन विथ वन ऑफ द रिटायर्ड ऑफिसर्स, और दिस वन इज़ रियली नाइस. आई डू रिकमेंड विजिटिंग दिस प्लेस 100% इफ़ यू आर इन दीव. एंड यहाँ पे आपको देखने के लिए लाइक आराम से 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा. So 2 hours later. guys, you can visit this beach. This is the Mandovi beach and it's one of the nice off-beat beaches. Like यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा if you wanna relax, and it's one of the nice places. दिस इज़ द गंगेश्वर महादेव टेम्पल. यहाँ पे 5 शिवलिंग है नीचे, जिसमें इस वाटर से उनका नेचुरल अभिषेक होता है, एंड इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेसेस. यहाँ पे उनका पानी से स्वयं अभिषेक होता है, जो मैंने अभी नीचे से वीडियो लिया हुआ, अगर आपको उसमें क्लियरली दिख रहा है. तो थिंग इज़, अगर आप यहाँ पे शाम को लाइक दोपहर के 3 बजे के बाद या सुबह को आएंगे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होगी. सो आई डू रेकमेंड कि अगर हो सके तो आप दोपहर को ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे शाम को बहुत ही ऐसे भीड़ हो जाती है. तो गाइस, हमने अभी गंगेश्वर के दर्शन कर लिए, एंड ट्रस्ट में गाइस, यहाँ पे हम लोग लाइक कब से ऑलमोस्ट 1 घंटे से बैठे हैं. एंड द एटमॉस्फेयर हियर, यहाँ पे नीचे जो अभिषेक हो रहा है वहाँ पे, इट्स सो गुड, इट्स सो पीसफुल कि आपको वहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा. ऑल्सो यहाँ पे ये कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई गेस नया टेम्पल या कुछ बना रही है गवर्नमेंट. सो गेट एंड थिंग, सो आई गेस 1-2 साल में यहाँ पे कुछ अच्छा सा टेम्पल या वो कुछ भी होगा. सो अब हम चाहते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं वहाँ पे. और गंगेश्वर टेम्पल के बाद हमको वी गॉट टू नो दैट दीव म्यूजियम इज़ क्लोज टेम्पररी.
एंड सेंट पॉल चर्च गए थे, वो भी क्लोज्ड था, सो वी जस्ट केम हियर. दिस इज़ द चक्रतीर्थ बीच एंड वी वर थिंकिंग टू जस्ट relax for a bit here and listen to the soothing sound of the waves. So that's it, ending our day 2. Hello everyone, good morning. Har Har Mahadev. So it's day 3 of our Div tour और आज हमारा चक्रवर्ती to नागवा में शिफ्टिंग है दूसरी रिसोर्ट पे. बट इन बिटवीन वी आर हैविंग अवर डे 2 टू सोमनाथ. सो आज हम लोग सोमनाथ जाने वाले हैं. वहाँ पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू विजिट द नियर बाय प्लेसेस इन सोमनाथ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल्स, सोमनाथ बीच एंड ऑल दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. So let's get going. Catch you guys at Somnath. हमने अभी अपना कार पार्क कर दिया. इट वॉज लाइक अराउंड 1 hour and 30 minutes की जर्नी फ्रॉम चक्रतीर्थ अवर रिसोर्ट से यहाँ सोमनाथ तक. और अभी हम लोग सोमनाथ मंदिर में जा रहे हैं दर्शन के लिए. गाइस यहाँ पे है पीछे सोमनाथ का मंदिर. वहाँ से आप लोग एंट्री करेंगे और यहाँ पे आपको फ़ोन और वो सब जमा कराना पड़ेगा. इट इज़ अ काइंड ऑफ रूल. सो इट इज़ रेकमेंडेड कि आप अपनी जो भी कीमती चीज़ें हैं वो यहाँ पे जमा करवा के जाएँ. और यहाँ पे ऐसे अंदर आपको टोकन नंबर्स और वो सब दिए जाएंगे. सो A few moments later. सो गाइस हम लोगों ने जो सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर लिए हैं. सो 12 बजे की आरती अटेंड की एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट. आई डेफिनेटली डू रिकमेंड विजिटिंग द टेम्पल एट द टाइम ऑफ आरती. दोपहर को आपको ज़्यादा धूप लगेगी बट डेफिनेटली कोई भी एक आरती अटेंड कर सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द गुड बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई वुड से. और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कुछ खाना पीना खाने. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग ऑन अ सोमनाथ विजिट. सो बाकी की प्लेसेस आपको बाद में दिखाएंगे. सो गाइस हमने अभी सोमनाथ टेम्पल मेन टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं. दोपहर वाली आरती भी अटेंड कर ली और अब हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ दर्शन के लिए. बेसिकली ऑल द फेमस प्लेसेस एंड टेम्पल्स इन सोमनाथ दैट वी आर गोइंग टू विजिट नाउ. और अभी आप यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो आप कुछ भी पर डे का रेंट करके सारे प्लेसेस घूम के आ सकते हैं. एंड वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द जर्नी. सो लेट्स गेट टू सी सम मोर प्लेसेस. इसके अंदर द ट्री विच यू कैन सी दैट इज़ द ट्री जिसके नीचे श्री कृष्ण सो रहे थे और उनके पाँव में उस टाइम पे बाण लगा था. सो दैट इज़ द ओरिजिनल वन. अभी भी उसको प्रिजर्व कर. एंड सो बेसिकली दिस इज़ द प्लेस जहाँ से वो शिकारी ने तीर चलाया था और श्री कृष्ण के पैर में लगा था. वो तीर यहाँ से चलाया गया था. और भालका तीर्थ जो हमने विजिट किया वो जगह थी जहाँ पे तीर लगा था. सो दिस इज़ लाइक नाइस काइंड ऑफ प्लेस. यहाँ पे ऐसे 5 शिवलिंग है अगर आप लोग देख सकते हो तो. और अच्छी खासी जगह है. दिस इज़ द नेक्स्ट स्टॉप गाइस, श्री गोलोक धाम तीर्थ. और यहाँ पे ये सारे मंदिर एक साथ आपको देखने मिल जाएंगे. गुफा, ये घाट एंड बैठक जी एंड ऑल दोज प्लेसेस. तो आपको वो सारी ही जगह है यहाँ पे एक जगह दिखने को मिल जाएगी. A few moments later. पे है सूर्य मंदिर, 5 पांडव गुफा और हिंगलाज माता का मंदिर इस गली में से. यहाँ पे थोड़ा सा there's like a small kind of market. तो guys ये है त्रिवेणी संगम. यहाँ पे this 3 rivers meet over here. Oh my god. Aesthetics of India. Places like this are the core aesthetics of India. This is a beautiful place. I mean 3 rivers meet here. So guys, this is practically the last destination of today's Vande Somnath trip, Ram Mandir.
वी आर फाइनली डन विद द डे 3. हमने सोमनाथ डे टूर कर दिया है, सारी प्लेसेस देख ली है, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू आवर नेक्स्ट रिसोर्ट दैट इज़ एट नागवा. सो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं. दैट्स इट फॉर राइट नाउ. कैच यू गाइस लेटर. सो हम अभी सोमनाथ डे ट्रिप के बाद चेक इन एंड स्टफ कर लिया. देन यहाँ पे वी हैव दिस नागवा बीच राइट ऑन द सामने की साइड ऑफ अवर होटल स्टे. सो अभी हम वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करके आए नियर द बीच. इट्स सो पीसफुल एंड सो गुड. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग. यहाँ पे एक आई डोंट नो इफ यू कैन सी देयर और नॉट हियर, बट दैट्स अ छोटा सा काइंड ऑफ फूड मार्केट. सो आप वहाँ पे जाके ऐसे रिलैक्स कर सकते हो. यहाँ पे बाजू में ही बीच है. इफ़ यू कैन हियर द साउंड ऑफ वेव्स, सो यू कैन जस्ट ईट एंड रिलैक्स एंड दैट्स ऑल. एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट डे में. दिस वाज इट फॉर टुडे. कैच यू गाइस ऑन द नेक्स्ट डे. The next day. अभी हम लोग आ गए हैं नागवा बीच पे, एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस बीच ऑफ द दीव. सो अगर आप दीव में हैं तो आप यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, एंड यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने मिलेंगे. सो गाइस अभी हम लोग आ पहुँचे हैं फुडाम बर्ड सेंचुरी, जहाँ पे हम यहाँ से बर्ड्स देख सकते हैं. यहाँ पे ऐसे पूरा उनका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से एंट्री है. इसके बाद थोड़ा सा चलना है, एंड देन वी हैव अ बोटिंग which costs 500 rupees per boat. It's not per person, it's per boat, and one boat can accommodate around 5 people. So अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे. Hey guys, so we just visited Fudam Bird Sanctuary, and it is one of the most visited places if you are in Nagwa, especially Diu, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोट में ले जाते हैं through binoculars. We get to see a lots of different species of birds. It's nice and peaceful experience when sailing through the river or canal. It's actually canal from the sea nearby. और रिटर्न में अच्छा खासा स्पीड बोट का राइड. सो इट्स क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड विजिटिंग दिस प्लेस. एंड अभी हम नेक्स्ट जाएंगे किसी बीच पे. And that's it with today's itinerary.